गड्ढा होता जिसमें मैं घुस जाती और उससे ना निकलती. Because of that, nobody else went into a public sector hospital amongst us. And that was the day when I think I cried the most. We had no way or we had no room of going back on that. मेरा नाम तस्नीम एहसन है और मैं प्रोफेसर एमेरिटा हूँ जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में, और मैं बेसिकली एंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट हूँ, और मैं इसी शोबे में ट्रेनिंग भी कराती हूँ स्पेशलिस्ट की. This is such a nice picture of her. This is Paisley. Paisley. He's put in Radia's graduation. No, this is Amna's graduation. Her masters. Master. हमने स्कूलिंग और कॉलेज तो फिर के पूरे पाकिस्तान में किया, लेकिन फाइनली फिर डाउ मेडिकल कॉलेज से मैंने मेडिसिन किया. उसके बाद फिर मैंने हाउस जॉब जिना हॉस्पिटल में किया मेडिसिन में, और सर्जरी का हाउस जॉब उधर सिविल हॉस्पिटल में किया. उसके बाद हमारी शादी हुई. तो मैं शादी के बाद माय हस्बैंड हैड मूव टू स्कॉटलैंड फॉर हिज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ इन पीडियाट्रिक्स. सो मैं अपना हाउस जॉब वगैरह कंप्लीट करने के बाद वहाँ चली गई. तो उधर फिर काम और ट्रेनिंग शुरू हुई. तो अगले 5 साल मैं स्कॉटलैंड में ही ग्लासगो में बेसिकली ट्रेनिंग करती रही. So I did my part 1, part 2 and my part 3 over there. My first child, Amna, arrived there, and it was after a lot of struggle that I had my first baby. So if you were to ask me what makes you most happy, it's my children and now my grandchild, Sabrina. I'm still trying to finish it. But That's my grandchild, Sabrina. yeah, Mary. Grandchild Sabrina. And if you see up here at the top, that picture of this name I drew, that is something which I drew before we got married. आतिश जवान था. Apart from the progress in profession, when you climb up the ladder, so to speak, the fact that she progressed from being an assistant professor, an associate professor to professor, and then get on to that phase where she progressed to becoming the executive director of JPMC as the first female executive director. So that was something which obviously would make anybody happy. It made me immensely happy. When you're called about your babies and the emergencies and everything, I feel very stressed about it. Even though I'm a doctor, I feel, oh my God, will this baby survive? What will happen? And of course, एक दूसरे के profession के जो aggravations है वो तो affect करते ही हैं. But I think मेरे profession के aggravations have affected him more than his profession. But not your professional profession. It's the paraprofessional activity. Yes, it's what you have gone through during your professional work, stories, and you came back with at the end of the day, or perhaps every day at some point in time. There was this case that I had diagnosed, and I can't even remember what it was, but it was very interesting, and I had diagnosed it, and I had expressed an opinion to the professor that I was going to be writing it up. And lo and behold, the file goes missing and never to be found again. हर जगह ये है कि आप this race to publish, और उस race to publish में आप दूसरों को, you step on other people's toes unnecessarily. So your DNA helix is one such example. 3 men got the Nobel Laureate Award for it, whereas it was the discovery of a woman. I got to work in time, did what had to be done, and came home in time.
So when you work like that and your seniors prefer to stay in their offices, then obviously the patients and the students and the junior doctor, you're meeting their needs, fulfilling their needs. तो उस वक्त फिर आपके जो सीनियर्स होते हैं वो अनकम्फर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं because they feel that you're stealing their thunder. और वो जो हम यहाँ सोच कर आए थे वो मुल्क फिर बतदरीज बद से बदतर होता रहा. We had no way or we had no room of going back on that. I received a letter saying 2 दिन बाद इम्तिहान था that you've been appointed an examiner and along with the 2 other associate professors. So it was just, and I was very surprised because it's usually the professors who are the senior most person in the department. Final year का exam था Sindh Medical College का. तो मैंने जाके प्रोफेसर से कहा कि मैंने कहा हमें क्यों एग्जामिनर बनाया है, why are the professors not doing this duty? तो he said हम लोग बहुत बेइज्जत हो चुके हैं, अब आप लोगों की बारी है, अब जूनियर्स की बारी है. जो भी गई डायरेक्टर के पास बताने के लिए कि ये वो है, आई एम द जूनियर मोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर इन दिस डिपार्टमेंट, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एग्ज़ाम. और मेरे भी ना करने की वजह ये थी कि मुझे पता था कि इम्तिहान में क्या होता है. इट्स अगेन वन ऑफ दोज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस. तो तस्नीम by virtue of her public sector hospital work, वो उन्होंने उसका ज़्यादा मुकाबला करना पड़ा इसके मुकाबले में कि जो है मैंने प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में कहा. मेरे पास आए और टॉस कर रहा है, कुछ एक बोल रहा है मुझसे और एक हाथ में इस तरह कोई चीज़ टॉस कर रहा है. ही सेज टू मी, ये देख रही हो क्या है? एंड देन ही होल्ड्स इट लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ मी. इस गोली पे तुम्हारा नाम लिखा है अगर तुम कल एग्ज़ाम पे आई. मैंने कहा मैं गवर्नमेंट की मुलाजिम हूँ, मुझे अगर ये ड्यूटी दी जाएगी कि मैं कल परसों जाके इम्तिहान लूँ तो मैं ज़रूर आऊँगी वहाँ पे, आप भी आइएगा. आई और उन्होंने ये हमें कहानी सुनाई कि आज ये हुआ. तो उस वक्त कि अब इसके बाद क्या होने वाला है. बिकॉज ऑफ दैट nobody else went into a public sector hospital amongst us. One of those crazy rainfall, जब पूरी रात बारिश हुई थी और कराची डूब गया था, तो जिना में भी यही हुआ था. हमारा भी लो लाइंग एरिया था, डूब गया था और हमारा जो बिजली फेल हो गई थी और जो हमारा जनरेटर था वो भी फेल हो गया था. तो वो बहुत पुराना जनरेटर था, ज़माने से हमें PWD कह रहे थे कि ये जनरेटर रिप्लेस करें. तो जब फंड्स नहीं देते तो हम कहाँ से रिप्लेस करें? मैं अपने घर से तो जनरेटर नहीं ला सकती, इनफैक्ट ह्यूज जनरेटर. तो वो जनरेटर पैक था. जो जिसने उसको ठीक करना था वो आदमी कोरंगी में रहता था और वो कोरंगी भी टोटली फ्लडेड था. देयर वाज नो वे ही कुड कम आउट. तो न्यूरो सर्जरी में कुछ पेशेंट्स की डेथ हुई. उसके अगले दिन लीड हेडलाइंस है उर्दू के, वो 2-3 सफ़े के जो अखबार होते कि जिना अस्पताल में बिजली की बहाली नहीं होने की और डायरेक्टर की पता नहीं क्या कहते हैं गफलत से 4 के 6 कितने मरीज़ मर गए. और इंक्वायरी कौन हो गई और एक पूरी इंक्वायरी कमेटी आ गई. उस इंक्वायरी में पुलिस वाले भी बैठे. इंक्वायरी में उन्होंने मुझ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी थी. एंड आई कुड हैव बीन अरेस्टेड फॉर मैनस्लॉटर स्ट्रेट अवे. आई वाज एडवाइज्ड कि आप फ़ौरन जाके स्टे ऑर्डर लें वरना यू कैन बी अरेस्टेड फॉर दिस. अगेन मुझे बुलाया सुबह के वक्त इंक्वायरी में, तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखा हुआ था टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज डेथ्स. और मैं उससे पहले इंक्वायरी कर चुकी थी. दे वर ऑल पीपल हु वर एक्सपेक्टेड टू डाई. और जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी फेल होती है तो जो आपका वेंटिलेटर होता है उसमें बैकअप सेवरल आवर्स की बैटरी होती है. सो दे वर्ंट विदाउट वेंटिलेशन. मैंने कहा जी आई डोंट एग्री विद योर टर्म्स ऑफ रेफरेंस. तो आप ये ऑब्वियसली टर्म्स ऑफ रेफरेंस मुझे बता रहा है कि यू कम टू फ्रेम मी. तो मैं आई हैव टू टॉक टू माई लॉयर एंड आई हैव टू गिव यू अ रिटन स्टेटमेंट एंड आई कांट डू दैट नाउ, सो आई डू इट टुमारो. तो नहीं हम लोग देखिए हमारी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, इसको भी चेंज कर देते हैं पेंसिल से काट के. मैंने कहा आपके ख्याल में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इस तरह चेंज होती है? दीज वर वेरी स्कैरी एंड वेरी स्ट्रेसफुल मोमेंट्स. अभी तो मैं बड़े आराम से ये सब बातें कर रही हूँ, but when it was happening it wasn't just scary for me. You can well imagine कि मेरी ख़ानदान पे इसका क्या इम्पैक्ट था. कि no wonder my children never told me to write my story because they felt it would be so stressful for me. Don't want to live it again. Not for just me, but
for the extended family, for our children. मुझे बहुत रोना आता है, लेकिन मैं काम की जगह पे कभी नहीं रोई. मैं घर आई या गाड़ी में बैठ गई, when I was in my safe space, तब मैं रोया कर. बट मैं सबसे ज़्यादा रोई थी घर आके जब मेरे बारे में वो ख़त इन्होंने सर्कुलेट किया था in every institution of the city and perhaps out of the city as well, about my, what did they call it? Moral turpitude, immoral activities. So जब मेरी immoral activities का खत, and it's addressed to the Prime Minister and the President and the Chief Justice and किस को एड्रेस किया हुआ था, and a copy of that had gone to every consultant in the city. And that was a day when I felt like, कोई गड्ढा होता जिसमें मैं घुस जाती और उससे ना निकलती कभी भी. And that was the day when I think I cried the most. और उसके बाद I didn't want to go to work. But सुबह जब मैं उठी तो फिर मैंने कहा, again my father's reminder, why should you let other people make you leave your job and, hide in a hole? So I put up a brave front the next morning and I showed up at work just to let them know that I am not defeated. कभी भी ये नहीं हुआ, it perhaps made us stronger. This was it and we are going to pack up and leave. No. तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए.